So in the last class, we had started the revision for this particular chapter, South Asia and the Contemporary World, and we are doing it according to the new revised syllabus, but almost the content is same for this particular chapter. So we had already discussed what is South Asia. In this, we had seen the geographical location of the countries and the members of South Asia, and why they are so important in terms of the geography and why they are so isolated in terms of its geography. We said we talked about Himalayas in the northern part, then we talked about Indian Ocean, Bay of Bengal, and you can see the southern part. So I had shown you that in the map. Then I had put up a question for you that was the South Asia experience of democracy has expanded the global imagination of democracy. It means the type of democracy we have seen in South Asia, especially countries like Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, India. So in that we can say that question can come that South Asia का जो experience रहा है regarding democracy has expanded the global imagination. Globally at the world platform, it has increased its imagination, and we had to discuss that with the help of the examples which we have seen in that last part which we have studied. We had studied about Bangladesh, Pakistan in short. But now in detail we will be studying about each and every state, and today we will be starting about the military and democracy in Pakistan. We will see the complete process and what time there was a military rule, then when there was democracy, and what are the reasons that there is no stable government in Pakistan. We will see that also, and I will give you some questions at the last of this topic. So let's start from the chapter number page number 68. Topic you can see the military and the democracy in Pakistan. So here you will have to remember certain important names and certain important dates in case question comes from this topic, and chances are इससे बहुत questions आते हैं. So you have to remember these names serial wise. किसके बाद कौन आएगा? Because you will find most of the names very similar. So after Pakistan framed its first constitution, General Ayub Khan. So you have to remember this properly. जब भी constitution बना पाकिस्तान का, okay, after independence 1947 की बात हो रही है, तो जो पहला जनरल बना वो कौन थे? अयूब खान. जनरल जहाँ पे वर्ड आ गया जनरल, इट मींस किसका रोल था? मिलिट्री का रोल था. किसी भी लीडर के नेम के आगे जनरल हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर हो गया वहां पे किसका रोल था? मिलिट्री का रोल था. So after Pakistan framed its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. Soon got himself elected means there were no free elections. But for the sake of democracy, they used to pretend like we are a democratic country. But in real sense, they were not having the democracy. वो जनरल थे, military rule था. He had to give up office when there were popular dissatisfaction against his rule. पर जिस तरीके का उनका रूल रहा, like a dictator, like a monopoly, सारी powers अपने हाथ में थी, military rule था, बहुत dissatisfied थे लोग उनके रूल से, उनकी जो needs थे, demands थे, fulfill नहीं हो पा रही थी, so वहाँ पे बहुत सारे protest शुरू हो जाते हैं for democracy, for removing him. Okay. This gave it to a military takeover once again under General Yahya Khan. याद रखना है. तो इसमें एक मौका मिल जाता है to the new general to remove him, and himself he became the general or the leader of Pakistan. His name was General Yahya Khan. पहले Ayub Khan आए, उसके बाद General Yahya Khan. During Yahya's military rule, अब याद रखेंगे Yahya Khan क्यों important है? Which is the war we have seen of 1971. 1971 का war हुआ था इंडिया पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होती है. At that time, this person, General Yahya Khan, was the military officer there. He was a leader. Okay. पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस. उसी के अंदर पाकिस्तान जो बांग्लादेश क्राइसिस देखा था वो जनरल याह्या खान के टाइम पे ही बात है. एंड आफ्टर द वॉर विद इंडिया इन 1971, जब 1971 में वॉर हुआ, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. उसके बाद क्या होता है? ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे, इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश. आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप. पहली बार अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, एक कैसी गवर्नमेंट आती है? इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वो किसके अंडर आई थी? याद रखेंगे, जुल्फिकार अली भुट्टो. याद रखा पहले कौन आया? सबसे पहले अयूब खान. उनको रिमूव किया, लोग हैप्पी नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे उनके रूल से. कौन आया उनके बाद? याह्या खान. याह्या खान से याद रखिए एक इंसिडेंट, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है 1971, जिसमें बांग्लादेश क्या बन जाती है? इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है. तो ऑफ कोर्स जब वो वॉर हार रहे तो लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे. वो उनको हटा करके अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों ने बोला हमें कैसा रूल चाहिए यहाँ पे?
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए और बहुत प्रोटेस्ट पढ़ रहे हैं, हमें तो आइडिया नहीं आ रहा है, तो बहुत प्रोटेस्ट चलता था वहां पर। वो किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते थे? दे वांटेड टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें उनको राइट टू वोट हो, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करें। इस टाइप का डेमोक्रेटिक एक इलेक्शन हुआ, इलेक्ट किया इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, याद रखना, जुल्फिकार अली भुट्टो came to power in Pakistan from 1971। डेट भी लिखिए, इस वाले की डेट लिखिए 71, मतलब वॉर हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का, उसके जस्ट बाद से वो इलेक्ट हो गए थे, और कब तक रहे? अराउंड 7 ईयर, 1977 तक रहे। The Bhutto government was removed by General Ziaul Haq soon। उसके बाद इस गवर्नमेंट को एक मिलिट्री रूल, मिलिट्री कूप कह सकते हैं, तुरंत फिर से हटा दिया गया in 1977, and again our new general came, his name was Ziaul Haq in 1977। जनरल जियाउल हक फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पर जैसे ही जनरल बनते हैं, पीपल हैड टेस्टेड डेमोक्रेसी, पीपल हैड टेस्टेड डेमोक्रेसी इन द सेंस, अब क्या था, एक बार उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर देख लिया था डेमोक्रेसी कैसी है, व्हाट आर द फ्रीडम्स दे वर गेटिंग अंडर डेमोक्रेसी, व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल दे हैड अंडर डेमोक्रेसी, एंड व्हाट वर द रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ द कॉमन पीपल, डिसीजन मेकिंग थी, राइट टू वोट थी। ठीक है, तो एक टाइप से उनको इंपॉर्टेंस मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर, लाइफस्टाइल अच्छा होता है, फ्रीडम होती है। सो एक बार टेस्ट कर लिया, तो जैसे ही जियाउल हक जनरल बनते हैं और मिलिट्री रूल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को रूल करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट इन पाकिस्तान जो 1982 से शुरू हो जाता है ऑनवर्ड्स, एंड इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन 1988 में। टाइम लगा, 77 में जनरल जियाउल हक आ गए थे, बट तभी से क्या स्टार्ट हो गए थे? प्रोटेस्ट हो गए थे स्टार्ट टू ब्रिंग डेमोक्रेसी वंस अगेन। तो फाइनली 1988 में फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। शी वाज फीमेल, पता होगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर है वहां की, काफी पॉपुलर थी ये बेनजीर भुट्टो। तो भुट्टो वर्ड से आप याद रख सकते हैं, जब भी दो बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है तो भुट्टो वर्ड कॉमन है। फर्स्ट वन वाज जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड जब दोबारा जियाउल हक को रिमूव करके दोबारा से जब गवर्नमेंट आती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो किसके अंडर आ रही है? बेनजीर भुट्टो। ठीक है, 1988 में ये बात। In the period that followed, Pakistani politics centered around the competition between her party and अब क्या है 10 years रहा। कब बना था जियाउल हक कब आए थे? 1977, और तब से प्रोटेस्ट चल रहा था। और कितने ईयर बाद आया? 1988 तक डेमोक्रेसी दोबारा आती है, और 1988 से कब तक रहती है? 1999। ये कितने ईयर हो गए? 10 ईयर। तो इन 10 ईयर में ये बता रहे हैं डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी पाकिस्तान में, और इतनी लंबी डेमोक्रेसी पहली बार चली थी। और यहाँ पे दो पार्टीज इमर्ज होती हैं, यहाँ पर देखिए इन द पीरियड दैट फॉलोड, मतलब इन 10 इयर्स में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन। कंपटीशन वर्ड आ गया, इट मींस वहां पे क्या थी? डेमोक्रेसी थी, एक रूलिंग पार्टी थी प्लस अपोजिशन पार्टी थी, एंड इन अ डेमोक्रेसी अपोजिशन पार्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसकी थी? बेनजीर भुट्टो की, और दूसरी पार्टी कौन सी थी? द मुस्लिम लीग। टू पार्टीज वर देयर, इसका मतलब डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही थी। एक गवर्नमेंट अपना अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रही है, अगर वो गलत है तो उसको चेक करने के लिए कौन है? अपोजिशन पार्टी है। लोग वोट दे रहे हैं तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, डिसीजन मेकिंग में उनका भी कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन 10 इयर्स 88 से 99 तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से फंक्शन किया। दो ये पार्टीज के नाम ले लिए मैंने। This phase of elective democracy lasted till 1999, as I told you, from 88 से 99 तक ये चला। When the army stepped again, फिर से आर्मी का रूल आता है, and this time जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, removed प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ठीक है, नवाज शरीफ आप सोच रहे हो कहां से आया? तो गवर्नमेंट कितनी ईयर के लिए बोल रहे हैं हम? 10 ईयर के लिए थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पहले कौन थी? बेनजीर भुट्टो। उसके बाद कौन बना होगा नेक्स्ट टर्म में? नवाज शरीफ। फाइनली 99 में नवाज शरीफ को हटा देते हैं कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ, और फिर से किसका रूल आ जाता है? आर्मी रूल आ जाता है, मिलिट्री रूल आ जाता है। ठीक है, फिर इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। फिर से क्या लिखा हुआ है? गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। ये वो जनरल था, मिलिट्री रूल, बट टू शो द वर्ल्ड कि यहाँ पे डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, वो अपने आप को कौन सी डेजिग्नेशन देते थे? प्रेसिडेंट की। तो अपने आप को खुद इलेक्ट करवा लेते थे कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मिलिट्री रूलर में लिखा जाता है, मिलिट्री तो के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान कंट्रोल में है ही, बट एज अ प्रेसिडेंट आल्सो ही वांट टू कंट्रोल पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान continued to be ruled by army through the army rules have held some elections to give their rule a democratic image। कोशिश की उन्होंने कि हम अपनी जो ये मिलिट्री रूल चल रहा है कब से?
2001 में जब वो इलेक्ट हो गए थे एज अ प्रेसिडेंट, तो एक उन्होंने इमेज देने की कोशिश की है पाकिस्तान को कि कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, बट इन रियल सेंस इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज अ मिलिट्री रूल। बट since 2008 democratic elected leaders have been ruling Pakistan, पर आई डेट आती है 2008 के बाद से आज तक अब कंटिन्यूसली कौन सी गवर्नमेंट है वहां पर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, इमरान खान, ठीक है। तो तब से तो दिस इज अ प्रोसेस, इसको आप रीड करो अच्छे से क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि व्हाट वर द रीजंस भी पूछे जा सकते थे। पाकिस्तान हैड ऑलवेज अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी मिलिट्री रूल आया, कभी फिर से डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होती थी, दोबारा मिलिट्री रूल हो जाता था। व्हाट वर द रीजंस, उसका आंसर अलग होगा और इसका आंसर ये वाला अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर्स देख लेते हैं। बेसिकली फैक्टर्स आएंगे, व्हाट वर द फैक्टर्स, देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट देयर वाज अनस्टेबल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अनस्टेबल मतलब कभी मिलिट्री रूल था, कभी डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। फेलियर हाई टाइप से बोलेंगे स्टार्टिंग से ही। तो इसका देखते हैं क्या है। Several factors have continued to Pakistan's failure in building a stable democracy. पहले यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये स्ट्रक्चर था पूरा आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन आया, कब आया, कितने ईयर्स में किसका रोल चला, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स आ रहे हैं। Several factors have continued to Pakistan's failure in building a stable democracy. तो जो फैक्टर्स है लर्न होने चाहिए आपको। क्वेश्चन कैन बी देयर, a social dominance of military, clergy, landowning aristocracy had led to frequent overthrow of elected governments. यहाँ पे जो है सोशल जो डोमिनेंस है किसका है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे होते हैं जो मिलिट्री में, क्लर्जी कौन होते हैं, चर्च में जैसे फादर वगैरह होते हैं, वैसे इनमें जो अरब कंट्रीज है या जो पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्रीज है, इनमें कौन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके रिलीजियस गुरुज जो होते हैं, मौलवी वगैरह जो होते हैं, इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है वहाँ पे पाकिस्तान की सोसाइटी में। मिलिट्री हो गया, क्लर्जीज हो गए, लैंड ओनिंग क्लर्जीज जैसे जमींदार होते हैं, जो पावरफुल लोग हैं जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो लोग, इन लोगों का डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी इन्होंने इजीली उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, दोबारा यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया मिलिट्री रूल। क्योंकि मिलिट्री रूल के अंडर इन लोगों को क्या मिलती है, बहुत ज्यादा पावर्स रहती है इन लोगों के हाथ में। और जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो सारे सिटीजन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं एकदम। प्राइम मिनिस्टर को भी हम ये नहीं बोल सकते बहुत पावरफुल है, वो भी जो वर्क कर रहा है किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एंड फंक्शंस व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, कौन चाहेगा मेरे हाथ से पावर छीन ले। तो मिलिट्री रूल जब रहता है तो यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स, क्लर्जीज और ये जो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स हैं इनके पास बहुत ज्यादा पावर रहती है और ये सप्रेस करके रखते हैं सोसाइटी के दूसरे ग्रुप्स को। तो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी, कम्युनिटीज, ठीक है, अलग अलग लोग। इसी वजह से ये लोग हमेशा ओवरथ्रो कर देते हैं जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, क्योंकि लोग पावरफुल तो हैं। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। And establishment of military government. Pakistan conflict with India had made the pro-military groups more powerful. अब इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है इंडिया के साथ, कंटिन्यूसली बॉर्डर इश्यूज है, तो यहाँ पे लोगों को भी लगता है, मिलिट्री को भी लगता है कि द बेस्ट टाइप ऑफ और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे मिलिट्री है, क्योंकि इंडिया से इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, नेबरिंग कंट्री से इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो हम भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉवरेनिटी किसकी, पाकिस्तान की। उन्हें लगता है अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो पॉलिटिकल सिस्टम पे उनको इतना ट्रस्ट नहीं है। उनको लगता है पॉलिटिशियंस सेल्फिश होते हैं, अपना पर्सनल मोटिव के लिए वर्क करते हैं। उनको लगता है अगर यहाँ पर हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियंस आ जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकती है। तो उनको लगता है बेस्ट पाकिस्तान को जो प्रोटेक्ट कर सकता है वो कौन सा रूल है, मिलिट्री रूल है, ठीक है। ये उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो दूसरा वो ये रीड कर रहा हूँ, देखो, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया हैड मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल. These groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are front मतलब selfish हो सकते हैं. That Pakistan security would be harmed. पाकिस्तान की सिक्योरिटी हार्म हो सकती है अगर यहाँ पर कौन सिस्टम आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सारा पावर आ गई. Harmed by selfish minded parties and chaotic democracy. And that the army's stay in power is therefore justified. ये बोल रहे हैं आर्मी का रूल जो पावर में है, आर्मी मिलिट्री जो पावर में है, जो कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, सारी एक्टिविटीज, इट इज जस्टिफाइड. जस्टिफाइड बाय क्या रीजन दिया है उन्होंने बोला है जो सिक्योरिटी पर्पस है पाकिस्तान का, इट इज मोर मतलब सेफ इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री. क्योंकि अगर हम ज्यादा पावर्स डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते हैं तो ये बोले पॉलिटिकल लीडर्स कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं, सेल्फ मोटिव होता है उनका, सेल्फ प्रॉफिट्स के लिए ज्यादा देखते हैं. दे विल नॉट वरी अबाउट और दे विल नॉट थिंक अबाउट द नेशन.
फर्स्ट वो अपने बारे में सोचते हैं पॉलिटिशियंस, इनकी ये थिंकिंग है, इससे सोचते हैं मिलिट्री सबसे सेफ है। While democracy has not been fully successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiments in the country. ये जो डेमोक्रेसी इतना सक्सेसफुल अभी तक हम बोल सकते हैं नहीं रहा है पाकिस्तान में, बिकॉज टाइम टू टाइम जब भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई द मिलिट्री रूल हैज ओवरथ्रोन एंड दोबारा स्टैब्लिश हो जाती है आर्मी रूल, मिलिट्री रूल। बट यहाँ पर फिर भी हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके कि मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन इन पाकिस्तान, सॉरी ये वाला नहीं, फर्स्ट को जो दिन क्वेश्चन दिया था मैंने, साउथ एशिया एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन। ग्लोबल इमेजिनेशन मतलब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत एक बड़ा एग्जांपल सेट किया है कि डेमोक्रेसी की कितनी जरूरत है सारी कंट्रीज को। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा है बट फिर भी वहां पे लोगों ने बहुत हमेशा डिमांड की है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए। इतने सारे रीजन दिए हैं पाकिस्तान की आर्मी ने कि यहाँ पे आर्मी क्यों होनी चाहिए, और उसके बाद भी देखिए क्या लिखा है, while democracy has not been successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiments in country. Pakistan has a courageous and a relatively free press and a strong human rights movement. The lack of genuine, अब एक और अलग रीजन से, तो 2-3 रीजन मैंने दे दिए इसके जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टैब्लिश हो पाई है पाकिस्तान में अभी तक। आगे और रीजंस है, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज्ड द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। वहां की मिलिट्री को एक करेज, एक कह सकते हैं मोटिवेशन मिला है आर्मी को कि यहाँ पर आर्मी रूल ही होना चाहिए। वो कहां से मिला है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। यूएन हो या यूएस हो या जितनी पावरफुल कंट्रीज है, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया है कि पाकिस्तान में क्या इंस्टॉल की जाए, डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया जाए। इसका एक रीजन है, जो हमारी यूएन है या हमारी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, दे वांट पाकिस्तान में कैसा रूल हो? मिलिट्री रूल हो। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? पाकिस्तान हैज वेरी क्लोज लिंक्स विद अफगानिस्तान, तालिबान, आईएसआई, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है उनका बहुत ज्यादा लिंक है। उनको लगता है अगर वहां से मिलिट्री रूल हट गया तो जो, और पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, पता है ना, मैंने 1998 में उन्होंने भी टेस्ट किया था 1998 में, ठीक है, इंडिया के साथ। तो अगर उन्हें लगता है ये न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं, ये किसके हाथ में आ सकते हैं? टेररिस्ट के हाथ में इजीली आ सकते हैं, क्योंकि वो कंट्री सराउंडेड है टेररिस्ट ग्रुप से। तो ज्यादा कंट्रीज चाहती है, वेस्टर्न कंट्री, अगर हमें सेफ रहना है तो ये कंट्रोल किसके पास रहना चाहिए? आर्मी के पास रहना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है आर्मी है तो ये जो आर्सनल्स हैं, जो ये वेपन्स है, किसके कंट्रोल में रहेंगे? आर्मी के कंट्रोल में रहेंगे। इफ डेमोक्रेसी वहां पे स्टैब्लिश होती है, ठीक है, तो उनको उस सिस्टम पे इतना भरोसा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तभी लिखा है द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर encouraged the military to continue its dominance. The United States and the Western countries have encouraged the military authoritarian rule in past for their own reasons. तो उन्होंने बल्कि और encourage किया है मिलिट्री को कि कैसा रूल रखे वहां पे पाकिस्तान में, मिलिट्री रूल रखे हैं, डेमोक्रेसी को ना ले दें, पार्टी सिस्टम को ना ले दें। तो उनको बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है। Given their fear of threat of what they call global Islamic terrorism, सारी कंट्रीज को डर है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। हमने अफगानिस्तान वगैरह के बारे में सब पढ़ा है ना, ये नेबरिंग कंट्रीज हैं। And the apprehension of Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups, जो मैंने बताया। The military regime in Pakistan have been seen as the protector of Western interests. तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री रूल है वो एक टाइप से प्रोटेक्टर है, किसका प्रोटेक्टर है? Of Western interest in West Asia and the South Asia, ठीक है। So this was all about Pakistan. So you write 2 questions, one on page number 68 लिखो सबसे पहले, which can be a part from this topic. On page number 68 टॉपिक लिख लो, military rule and democracy are the two sides. Military rule and democracy are the two sides of a coin. Military rule and democracy are the two sides of a coin